السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرحبا بکم ایھا الاخوہ والزملاء والاصدقاء۔ دوستوں اور پیارے ساتھیوں، آج کا ویڈیو بہت آسان ہے۔ یہ مضمون آسان ہے لیکن اس میں بہت ساری چیزیں آپ سیکھ سکتے ہیں۔ یہ شخصیت کے بارے میں ہے۔ آپ اسے سیکھ سکتے ہیں کہ کسی کے بارے میں اگر لکھنا ہے تو کیسے لکھا جاتا ہے، بہت ہی سمپل، آسان اور اچھے الفاظ میں، اچھی تحریر میں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے، اسہامات الشاعر الہندی فضل الحق الخیرآبادی فی مدح رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسہامات، اسہاماتن منے اسہاماتن جمع اسہامات، اس کا مطلب ہوتا ہے حصہ، ٹھیک ہے، کنٹریبیوشن۔ الشاعر الہندی منے ہندوستانی شاعر، ٹھیک ہے۔ تو ہندوستانی شاعر فضل حق الخیرآبادی کا کنٹریبیوشن، اس کا حصہ رسول اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی میں، رسول اللہ علیہ وسلم کی مدح میں، ان کی تعریف میں، ٹھیک ہے۔ چلیے دیکھیے، نبذۃ عن حیات الشیخ فضل حق الخیرآبادی۔ نبذۃ منے ایک گوشہ، ٹکڑا، ٹھیک ہے، اس کو قطعۃ بھی بولتے ہیں، جزء بھی بولتے ہیں۔ تو شیخ فضل حق الخیرآبادی کے زندگی کا ایک گوشہ، اس کے زندگی کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ چلیے دیکھتے ہیں۔ وہ فضل حق بن فضل امام الخیرآبادی، ٹھیک ہے، وہ جو ہے فضل حق بن فضل امام الخیرآبادی ہے۔ وہ من مشاہیر العلماء الہنود فی القرن التاسع عشر للمیلاد، اور وہ 19ویں صدی کے مشہور ہندوستانی علماء میں سے ہیں، ٹھیک ہے۔ کون؟ یہی فضل حق خیرآبادی۔ ولد عام 1798 من المیلاد، ٹھیک ہے، وہ جو ہے پیدا ہوئے 1798 میں، فی مدینہ خیرآباد شہر میں، فی مدیریت سیتاپور الہند، ہندوستان کے سیتاپور ضلع کے ایک قصبہ یا شہر خیرآباد میں، ٹھیک ہے، یہ پیدا ہوئی ہے۔ وَيُقَالُ لَمْ يَكُنْ لَهُ فِي مَثِيلٌ فِي زَمَانِهِ فِي الْفُنُونِ الْحِكْمِيَّةِ وَالْعُلُومِ الْعَرَبِيَّةِ، اور کہا جاتا ہے کہ ان کا کوئی نظیر نہیں تھا، ٹھیک ہے، ان کا کوئی نظیر نہیں تھا، کوئی مثال نہیں تھا ان کے زمانے میں، کس میں؟ حکمتی فن میں اور عربی علوم میں، ٹھیک ہے، یعنی فلسفہ منطق میں اور عربی علوم میں، ٹھیک ہے، دینی علوم وغیرہ میں۔ وقد تمکن من حفظ القرآن الکریم فی 4 اشہر فقط، اور اس نے حفظ قرآن کریم مکمل کر لیا صرف 4 مہینوں میں، 4 مہینوں میں نے حفظ قرآن کر لیا تھا، ٹھیک ہے۔ کتنا ذہن کے تیز تھے۔ تو دیکھیے، ایک ورڈ ہے یہاں دیکھ لیجئے، تمکن من کا مطلب ہوتا ہے قدر علی، مطلب قادر ہونا، ٹھیک ہے، جیسے انہ لا یتمکن من التکلم بالعربی، وہ عربی میں بات نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ اور تمکن من سے لاتا ہے، جس طرح قدر علی، جیسے انا اقدر علی التکلم بالعربی، میں عربی میں بات کر سکتا ہوں، تو علی آتا ہے اور تمکن کے ساتھ من آتا ہے۔ چلیے، وعندما یتخرج کان فی الثالثۃ عشرۃ من عمرہ، مطلب جس وقت وہ فارغ ہو رہے تھے۔ تخرج یا تخرج کا مطلب ہوتا ہے فارغ ہونا، جیسے انگلش میں بولتے ہیں نا عربی میں، اردو میں، کہ ہم لوگ فارغ ہو گئے مدرسے سے، تو اس کو عربی میں بولتے ہیں تخرجہ، ٹھیک ہے۔ اور جو فارغین ہیں اس کی عربی ہے خریج، ٹھیک ہے، خریج مانے فارغ، خریج و ندوۃ العلماء، ندوۃ العلماء کے فارغ۔ تو جس وقت فارغ ہو رہے تھے، ان کی عمر کتنے سال کی تھی؟ 13 سال۔ انہ قد شارک فی ثورۃ 1857،
ज़िद्दा क़ुव्वत इस्तिमार अल-ब्रितानी। उन्होंने शिरकत किया था 1857 की बगावत में ब्रिटिश साम्राज्य की ताकत के खिलाफ। यानी 1857 में जो हिंदुस्तानियों ने बगावत की थी, किसके खिलाफ? ब्रिटिश रूल के खिलाफ, ब्रिटिश अंग्रेज़ के खिलाफ, उसमें भी वो शिरकत किए थे। व नतीजतन लिज़ालिका क़द नुफ़िया इला जज़ीरतिन मिन जज़ाइर सीलान, और सीलान के टापू में से टापू की तरफ उनको क्या जिला वतन कर दिया गया था। ठीक है, नफ़ा मने भेजना, दूर करना। ठीक है, उसको हज्जरा भी बोलता है। ठीक है, अजला भी बोलते हैं। है सो लब्बा निदा रब्बी, जहाँ पर उन्होंने अपने रब की आवाज़ को लब्बाइक, मतलब इंतकाल हो गए। कितना? 1278 हिजरी में। ठीक है, अब देखते हैं। इसहामातुहु का शायरिन हिंदीन फ़ी मदीन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका कंट्रीब्यूशन, उनका हिस्सा बतौर हिंदुस्तानी शायर के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ में, मदाह में। ठीक है, देखते हैं। युतबर शायर फजल हक अल-खैराबादी मिन शख्सियत बारिज़ा फ़िल हिंद, मतलब शायर फजल हक खैराबादी को हिंदुस्तान के मुमताज़ और नुमाया शख्सियत में शुमार किया जाता है। वकानत लहो शायरियतुन राया, और उनकी बेहतरीन शायरी है। ठीक है, वलल खुसूस फ़िल मदीह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ख़ास तौर से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदाह में, तारीफ़ में। ठीक है, क्या हो गया? चलिए देख लेते हैं कहाँ, यहाँ पे है। ठीक है, ये रहा, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। बीच में जो है ये एग्ज़िट हो गया है फाइल, तो आप लोग जो है थोड़ा सा वो बढ़ा लीजिए वीडियो को, उसके बाद फिर देख लीजिए। चलिए पूरा करते हैं। तो ख़ास तौर से जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद में वकाना गालिब कसाइदी फ़ी हज़ सदद, और उनके अक्सर जो कसीदे हैं इसी सिलसिले में है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदह में। ठीक है, वलिज़ालिका नस्तती व नक़ूला, इसीलिए हम कह सकते हैं इन्नहु काना आशिक़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि वो आशिक़ रसूल थे, यानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत ही शायदाई थे। कमा यक़ूलु फ़ी क़सीदति दालिया, जैसे कि अपने दालिया कसीदे में कहा था, क्या? फला मलाज़ सिवा खैरिल वरा जमान फ़िल ख़ल्क़ि वल ख़ुलुक़ि वल इहसानि वल जूद, कहते कोई पनाह नहीं है सिवाय वो जो तमाम मखलूक में बेहतर है। खल्क़ मतलब पैदाइश में, वल खुलुक़ अखलाक में, वल इहसान एहसान में, वल जूद और मतलब सखावत में, यानी एहसान और सखावत में जो सबसे बेहतर है, पैदाइश और अखलाक में सबसे बेहतर है, उसके अलावा कोई पनाह नहीं है। और यक़ूलु फ़ी मौज़िन आखिर, दूसरी जगह वो कहते हैं हुआ शहीद अलैहिम व शफ़ीउ लहुम, वही उन पर गवाह है और उनके लिए क्या शफ़ी है, सिफारिश करने वाला है। फ़ी यौम हौलिन शदीदिन लहुम मशहूद, मतलब एक सख्त और हौलनाक दिन में, यानी क़यामत के दिन। वमिन खिलालिल बैतनिल मज़कूरैन यत्तज़िहु लना, कहते मज़कूरा दो जो शेर हैं उनके ज़रिए वाज़ेह हो जाता है अन्ना शायर यमदह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि वो शायर जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ करता है। सो यज़कुरु अला मतलब आला सिफ़ातिही व अफ़ज़लिहा,
जहाँ पर वो उनकी जो आला सिफ़ात हैं और उनके जो बेहतरीन सिफ़ात हैं वहाँ तारीफ़ करते हैं। वमा मिन शक्किन, और कोई शक नहीं है, अन्ना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना अफ़ज़ल अन्नास फ़िल ख़ल्क़ वल ख़ुलुक़ वल इहसान वल जूद, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बेहतरीन थे खल्क़ माने पैदाइश में, अखलाक में, एहसान में और जुद व सख़ा में। कमा यज़कुरु शायर अन्नहु यकूनु शफ़ीअन लिन्नास फ़ी यौम हौलिन शदीदिन आई फ़ी यौमिल क़ियामा, जैसे कि शायर ज़िक्र करता है कि वो क्या लोगों के लिए शफ़ी होंगे एक सख्त होलनाक दिन में, यानी क़यामत के दिन। व यक़ुलु शायर अइज़न इख्तारहुल्लाहु महबूबन, अल्लाह ताला ने उनको महबूब बतौर महबूब चुन लिया। वरसलहु, उनको भेजा, ले रहमत, अपनी रहमत के लिए, वल इरशाद, और हिदायत के लिए, व तस्दीदिन ले उम्मतिन, और एक उम्मत की रहनुमाई और दुरुस्तगी के लिए। क़द तमन्ना रसूल लौ हसिबु मिनहा, बहुत सारे रसूलों ने तमन्ना किया है कि काश वो क्या होते, उन उम्मत में से होते, अला मारवा अहलुल मसानिद, जैसे कि अहले मसानिद ने बयान किया। यानी बहुत सारे नबी ने तमन्ना की है कि काश हम नबी ना हो के हम रसूल सल्लम की एक उम्मती होते तो ये ज़्यादा बेहतर होता। ठीक है, ये पता नहीं ये तमन्ना की ये है कि नहीं और कितनी बात दुरुस्त है पता नहीं, लेकिन ये यही कहना चाह रहे हैं इस शेर में। ठीक है, चलिए तो आज का वीडियो इसी पर इक्तफा करते हैं। थोड़ी सी खांसी आ रही है हमको, इसलिए हम ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं कर पा रहे हैं, और जो अच्छे मज़ामीन है उसका भी तर्जुमा नहीं कर रहे हैं, लेकिन ठीक होने के बाद इंशाल्लाह जल्द ही उस तरफ तवज्जो देंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए माअस्सलामा, इला लिक़ा।